Assalamu alaikum everyone and welcome to this video. It's been a while since I've last posted on my YouTube channel, and it's primarily because of the tough schedule that I've had over the past few months. But I do intend to start posting more regularly on this channel. So for those who are just new to it, I would recommend subscribing and going through the previous videos that we've covered over the last 1 year. And thank you very much for all the support and the comments that I get on the videos. It means a lot, and it's really encouraging, and it does push me to make more content videos for you. So this is a new in the series. We'll be doing a past paper analysis series on this channel as well. And the first video I wanted to do was on the recent CSS 2022 exam. We'll start with the essay exam primarily, and the idea is to just go through the paper itself, see what topics the examiner had chosen for the aspirants, and what are the possible ways that aspirants could have tackled those questions. So to begin, this is the essay CSS 2022 exam paper. There were a total of 10 questions, as is always the case, and the aspirants were required to choose one of them and write a comprehensive essay based on these topics. For essay writing techniques, there are numerous videos that I've already shared. I'll link them in the description below as well, so you can go through those if you need any help with how to attempt an essay exam, or what are the essentials of essay writing. But for the purpose of this video, we'll strictly be going over a brief analysis of the topics that came in the CSS 2022 essay exam. So what we'll be doing for the purpose of this video is we'll be going over these topics one by one, not in a chronological order, but primarily in the order of how popular each of these topics were. So we'll go into detail of some of the topics that were most attempted by aspirants, and then we'll briefly go over the remaining set of topics that came in the CSS 2022 exam. So to begin, we'll start with probably the most popular topic this year, which was digital democracy, social media, and political participation. So for this topic, it's important first and foremost, as I've mentioned in my previous videos on essay writing, it's important that you understand what the topic is. आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर ने कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं अपने essay के टॉपिक के अंदर, और वो किस तरह से कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ. क्योंकि डेमोक्रेसी के ऊपर हज़ार लोगों ने हज़ार टॉपिक्स लिखे होंगे, और इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो टॉपिक चूज़ करते हैं और जिस टॉपिक को अटैम्प्ट करते हैं, उस टॉपिक की डोमेन में आप रेलेवेंट रहें, और उस टॉपिक को उस तरह से टैकल करें जिस तरह से एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू. अगर आप सिंपल डेमोक्रेसी पे लिखना शुरू हो जाएंगे तो दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ दिस एसे, या फिर अगर आप सिंपली डिजिटल डेमोक्रेसी पे ही लिखना शुरू हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ दिस एसे. द कीवर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय द एग्जामिनर इन दिस एसे इंक्लूड डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. अब आपको चाहिए कि आप इन 3 कीवर्ड्स को देखें और देखें कि उनका किस तरह से एग्जामिनर ने लिंक बिल्ड किया है. उन्होंने किस तरह से डिजिटल डेमोक्रेसी को देखा है, और उसके फिर एम्बेड के अंदर देखा है कि किस तरह से सोशल मीडिया इन्हेंसेस या फिर डिमिनिशेस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन अ डिजिटल डेमोक्रेसी. तो डिजिटल डेमोक्रेसी इज़ अ लार्जर टॉपिक, और इसका जो सबसेट है, जो आपका फोकस एरिया होना चाहिए, वो सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए. दीज आर द कीवर्ड्स दैट द एग्जामिनर हैज़ यूज्ड. और इसके अंदर अगेन डायनामिक्स टू कंसिडर. अब क्योंकि एक ऐसे को देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व इट, ठीक है, देर आर मल्टीपल वेज टू गो अबाउट इट. आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट एंगल से सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव आई वुड से सोल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर ऐसे. तो आप ये मत समझिएगा कि इफ़ यू डिविएटेड फ्रॉम दिस, या फिर आपने कुछ और किया तो मे बी यूर रॉन्ग, या फिर मैं सही से कवर नहीं किया. ऑब्वियसली आई डू एक्सेप्ट के देर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दिस, लेकिन मैंने एक स्टैंडर्ड जिस तरह से मुझे समझ आई, जिस तरह से मैं इसको अटैम्प्ट करता, मैंने उस तरह से इसको एक ब्रेक डाउन किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक का. तो सबसे पहले डायनामिक्स टू कंसिडर देख लेते हैं. कीवर्ड्स आपको समझ आ गई कि क्या है. उसके बाद डायनामिक्स, जो आपको इस पर्टिकुलर ऐसे के अंदर जो चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए थी, वो मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये थी कि आपको सबसे पहले तो यू शुड हैव हैड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ओवर व्हाट डेमोक्रेसी इज़. ठीक है, डेमोक्रेसी इटसेल्फ क्या है, पावर टू द पीपल. ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इंक्लूड्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी इंक्लूड्स दैट रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल. ठीक है, ये वाला एक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए. और फिर उसके बाद ही साथ आपकी डिजिटल डेमोक्रेसी की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डिजिटल डेमोक्रेसी ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल डेमोक्रेसी से किस तरह डिफरेंट है. डिजिटल डेमोक्रेसी इज़ प्राइमरीली
द पावर दैट द पीपल एक्सरसाइज ओवर अ डिजिटल लैंडस्केप, जिसके अंदर सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, इंटरनेट प्राइमरीली, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. सो यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिजिटल डेमोक्रेसी, और ये आपका कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ के तौर पे आपको उसके अंदर इंक्लूड करना था अपने एस्से के अंदर, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि यू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ठीक है, तो डेमोक्रेसी और डिजिटल डेमोक्रेसी की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज़ इंपॉर्टेंट. ये जब आप इस्टेब्लिश कर लेंगे, उसके बाद आप अगले जो मेजर आपका फोकस एरिया है उस पर आएँ कि यू शुड डिस्कस द फीचर्स ऑफ सोशल मीडिया, और किस तरह से उन फीचर्स की वजह से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन्हांस होती है. इन फीचर्स के अंदर यू कुड हैव डिस्कस्ड हाउ द इंफॉर्मेशन इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, एवरीवन हैज़ द एबिलिटी टू पोस्ट ऑन द इंटरनेट, एवरीवन हैज़ द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट ऑन द इंटरनेट. सो देर आर मतलब बैरियर्स टू एंट्री भी कम है और बैरियर्स टू पार्टिसिपेशन भी कम है. तो ये एक तरीका होता है. दूसरा सोशल मीडिया का एक फ़ीचर है, वो है वायरलिटी का, जिसके अंदर आप वायरल वीडियोस, वायरल कंटेंट बहुत इजीली हो जाता है. आपको सोशल मीडिया एक इंडिविजुअल को एक्चुअली एक सफिशेंट वॉइस देती है कि वो अपना जो ओपिनियन है, अपना जो मुद्दा है, जो वो कहना चाहता है, जो वो सोचता है, वो बयान कर सके और लोग उसको सुन सकें और उसको एक अहमियत दे सकें, अगर उसके व्यू पॉइंट के अंदर वाकई ही कुछ दम है, वाकई ही कुछ सच्चाई है. तो उस हवाले से. और तीसरी पॉइंट आ जाता है कि इट्स कॉन्वर्सेशनल इन नेचर. तो एक डिबेट करना, एक पॉलिटिकल डिबेट करना, एक दूसरे को समझना, इट्स ईजियर ओवर द सोशल मीडिया. तो ये चीज़ें सोशल मीडिया के कुछ फीचर्स हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ रेलेवेंट हैं. ठीक है, आपने एक सोशल मीडिया वाला जो कीवर्ड है उसको टैकल कर दिया इसके अंदर, उसको रिलेट भी कर दिया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ. तो अब आपकी जो रेलेवेंसी है वो मेंटेन हो रही है अभी तक ऐसे के अंदर. उसके बाद आपने जो करना था, या फिर आप एक और तरीके से जिस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे, वो ये थे कि आपने जब सोशल मीडिया के फीचर्स को डिस्कस कर लिया, फिर आप देखेंगे हाउ पब्लिक पार्टिसिपेट्स इन अ डेमोक्रेसी थ्रू डिजिटल मीडियम्स. के पब्लिक जो है वो किस तरह से सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अपने डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेशन करती है. क्योंकि अगेन टॉपिक इज़ डिजिटल डेमोक्रेसी, ठीक है, और सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. तो आपका फोकस पार्टिसिपेशन के ऊपर रहना चाहिए. ठीक है, वो किस तरह से पार्टिसिपेट करती है पब्लिक यूजिंग सोशल मीडिया. अब उसके अंदर जिस तरह से वो पब्लिक पार्टिसिपेट करती है उसके कुछ डायनामिक्स मैंने इधर लिख दिए हैं. इसके अगेन इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं. उसके अंदर ये है कि पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन के अंदर सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है. आप हैशटैग्स के थ्रू और डिफरेंट चीज़ों के थ्रू, ट्रेंडिंग जो हैं हैशटैग्स के थ्रू आप एक पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं. उसके बाद आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी का एक एलिमेंट आ जाता है. आप अपने जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, उनके एक्शंस के ऊपर. ऑफन टाइम्स आपको नज़र आता है कि किसी मिनिस्टर ने या फिर किसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ने अगर कहीं पे मिसबिहेव किया या फिर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की है, तो उसकी वीडियो बनाकर या फिर उसका क्लिप या फिर उसकी पिक्चर शेयर हो जाती है इंटरनेट पे, और वो एक मीन्स है फॉर अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, तो इस तरीके से लोग अपने जो पब्लिक है वो एक डिजिटल डेमोक्रेसी के अंदर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बेहतर तरीके से अकाउंटेबल ठहरा सकती है, क्योंकि उनके पास एक एजेंसी आ गई है जिसके थ्रू वो लोगों को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं. तीसरा एक और पॉइंट हो सकता है सोशलाइजेशन का, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का. आपको पता है कि सोशल मीडिया को यूज़ किया जाता है मैस मूवमेंट्स के लिए. इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी एग्जांपल अरब स्प्रिंग की है. उसके अलावा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे सोशल मीडिया को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है. आपके पॉलिटिकल माइंडसेट मैच करता है, आप उनके साथ सोशलाइज़ करते हैं, आप अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, आप उन ग्रुप्स के थ्रू डिफरेंट एजेंडा सेट करते हैं, डिफरेंट प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं. तो इस तरह से एक अच्छा खासा आप पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू. ठीक है, तो आपने एक अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया कि सोशल मीडिया किस तरह से पब्लिक पार्टिसिपेशन को इन्हांस करता है और किस तरह से सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए पब्लिक एक अच्छे तरीके से या फिर एक मोर इफेक्टिव तरीके से कंपेयर टू ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन कर सकती है, बिकॉज दे हैव ग्रेटर एजेंसी, ग्रेटर वॉइस एंड दे कैन होल्ड पीपल अकाउंटेबल इन अ बेटर मैनर. तो एक सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, विच डायरेक्टली को रिलेट्स विद डिजिटल डेमोक्रेसी. ठीक है, आपने देख लिया किस तरह से रेलेवेंसी मेंटेन करते हुए इस पूरे टॉपिक को सम अप कर दिया जाता है इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर. साथ ही साथ फिर आगे अब क्योंकि आपको एक एस्से लिखना है, तो एस्से शुडंट बी वन डायरेक्शनल. इट शुडंट बी कि आपने एक बात की उसको ही लेकर चलते चलते उसी को कंक्लूड कर दिया. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट या फिर कुछ ऐसा पॉइंट भी लेकर आएँ जो कि क्रिटिकली एनालाइज करे इस पर्टिकुलर
टॉपिक को, ठीक है। तो इसके अंदर इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर मुझे जो जहन में आया वो ये था कि सोशल मीडिया की जो मिस इन्फॉर्मेशन का इशू आ जाता है और उसके फिर क्या इम्पैक्ट्स होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर फेक न्यूज़ आ जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मैनिपुलेशन आ जाती है, उसके अलावा डीप फेक्स आ जाते हैं और इस तरह की सारी चीज़ें जो आजकल हमें देखने को मिलती हैं, जो कि सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी प्रेवलेंट है और काफ़ी ईजी है उन चीज़ों को प्रिवेल करना, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन ऑफ द पब्लिक इज़ वेरी ईजी। तो आप जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ सेफ स्पेस पर से, ठीक है। और इसके अंदर आप डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका और डोनाल्ड ट्रंप की एक एग्जांपल आ जाती है, इंडियन क्रॉनिकल्स जो कि EU डिसइन्फो लैब ने डिस्कवर किए थे, तो उनकी एग्जांपल आ सकती है। तो इस तरह से यू कैन गिव अ वाइड रेंज ऑफ एग्जांपल्स भी इस पर्टिकुलर अपनी आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ में, जो कि आपकी एनालिसिस होगी। और इसके अलावा आप बता सकते हैं किस तरह से जो डिजिटल स्पेस है, डिजिटल डेमोक्रेसी है, दैट हैज़ सम बेनिफिट जो कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए, लेकिन उसके कुछ नुकसानात भी हैं जो कि अभी रिसेंटली देखने में मिलते हैं। फिर आप उस चीज़ से मूव ऑन करके आप उन जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, लेजिस्लेशन के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, जो भी पॉइंट्स हो उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, ताकि जो चैलेंजेस डिजिटल डेमोक्रेसी को करंटली फेस करने पड़ रहे हैं उनको हम लोग उस तरह से कर ले मैनेज के उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना पड़े, ठीक है। तो अब आप देखें, अगर इसको मैं समराइज़ करूं प्रॉपर्ली, तो इसके अंदर यही आता है कि शुरू से लेकर एंड तक एक रेलेवेंसी रही है टॉपिक के साथ, और आपने पहले एक आर्ग्यूमेंट दी, उसके बाद उसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट दी, और उसके बाद फिर उस काउंटर आर्ग्यूमेंट को एड्रेस किया थ्रू योर रिकमेंडेशंस। तो ये एक होलिस्टिकली आपने एक ऐसे को इसको टैकल कर लिया। तो अगेन इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा डायनामिक्स आप कंसिडर कर सकते थे। आप इसके अंदर पार्टिसिपेशन को लेते हुए जेंडर लेंस के थ्रू भी आप एनालिसिस कर सकते थे कि मेल फीमेल पार्टिसिपेशन स्क्यूड। उसके अलावा आप जो है इकोनॉमिक लेंस भी इस्तेमाल कर सकते थे कि जो सोशल मीडिया है वो यूजुअली बिलोंग्स टू द मोर पीपल हु कैन एक्चुअली अफोर्ड फोन्स, हु कैन एक्चुअली अफोर्ड इंटरनेट, हु आर एक्चुअली एजुकेटेड, सो इट रिमेन्स एन एंटरप्राइज ऑफ द एलीट। तो इस चीज़ से इसके अंदर देयर आर मल्टीपल डायरेक्शंस दैट यू कुड हैव टेकन, लेकिन इस पर्टिकुलर आंसर के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसके लिए मैंने मिस इन्फॉर्मेशन को फोकस रखा अपना, लेकिन इसके अलावा भी आप डिफरेंट तरीक़ों से इसको टैकल कर सकते थे। तो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक दैट वी कवर्ड एंड आई होप इट मेड सेंस टू यू ऑल। Now on to the next one, जो कि है the controversial issues of feminism in contemporary women's rights movement. अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में आई फाउंड इट टू बी अ लिटिल ट्रिकी। डिजिटल डेमोक्रेसी वाज रैदर स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये थोड़ा सा ट्रिकी था इन द सेंस कि इसने कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ के बारे में बात की है और कंटेम्प्रेरी वुमेंस राइट मूवमेंट के अंदर क्या कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अंदर अब इश्यूज़ का लफ्ज़ सुनकर लोग फेमिनिज़म के साथ इश्यूज़ या फिर उसके जो चैलेंजेस हैं सिर्फ वो अगर डिस्कस करते तो दैट वुड हैव बीन रॉन्ग, बिकॉज द टॉपिक जो कीवर्ड्स हैं वो है कंट्रोवर्शियल इश्यूज़, ठीक है। कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ क्या हैं और फिर कंटेम्प्रेरी वुमेंस राइट्स मूवमेंट के अंदर इसका क्या रेलेवेंस रहती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको समझनी थी और उसी के बेसिस पे आपने अपना ऐसे अटैम्प्ट करना था। तो अगेन इसके अंदर भी जो आपको डायनामिक्स कंसिडर करने की ज़रूरत थी वो एक तो फेमिनिज़म इटसेल्फ क्या है। इट्स इस तरह के टॉपिक्स के अंदर देयर इज़ नो नीड कि आप अपना जेंडर स्टडीज़ पूरा अंदर डाल दें कि फ़र्स्ट वेव क्या थी, सेकंड वेव क्या थी, थर्ड वेव क्या थी, क्योंकि उसकी इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ रेलेवेंस नहीं है। उसने एवोल्यूशन ऑफ फेमिनिज़म नहीं पूछा, उसने आपसे कंटेम्प्रेरी सवाल किया है कि फेमिनिज़म के कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ क्या हैं और इसकी कंटेम्प्रेरी वुमेन राइट्स मूवमेंट के अंदर क्या रेलेवेंस है। तो इसके अंदर आपको वेव्स के ऊपर जाना वुड बी आई थिंक इररेलेवेंट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन इज़ कि आप इसको ज़्यादा फैक्चुअल रखते, आप फेमिनिज़म को डिस्कस करते, उसके जो व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, व्हाट इट मीन्स एंड हाउ इज़ इट रेलेवेंट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो उस चीज़ को अगर डिस्कस कर लेते तो दैट वुड हैव बीन मोर रेलेवेंट। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री की है तो आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग इट्स नॉट एज रेलेवेंट एज द फैक्ट कि अगर आपने फैक्चुअल एनालिसिस उसकी की होती है इंस्टेड ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस। तो ये है। उसके बाद फिर आप कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ देख लें जो कि अभी मॉडर्न डे फेमिनिज्म को कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपने वही घिसी पिटी बातें नहीं करनी थी कि हेल्थ के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, बिकॉज दे आर नॉट कंट्रोवर्शियल इश्यूज़, दे आर जस्ट इश्यूज़ दैट आर फेस्ड बाय वुमेन एज अ होल। वो फेमिनिज्म के पर्टिकुलरली इश्यूज़ नहीं हैं जो कि फेमिनिज्म खुद जिनको टारगेट करती है। उनके लिए इश्यूज़ आ जाते हैं ज़्यादातर रिलेटेड टू हरासमेंट, रिलेटेड टू अबॉर्शन। इसके अंदर काफ़ी एक कॉमन एग्जांपल या फिर काफ़ी रेलेवेंट एग्जांपल वुड बी द रो वर्सेस वेड जो भी यूएस के अंदर इशू चल रहा है, तो वो एक काफ़ी अच्छी एग्जांपल हो सकती थी। उसके बाद सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद बैटल ऑफ द सेक्सेस, अस वर्सेस देम की डिबेट, मैन वर्सेस वुमेन की जो डिबेट है वो एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है जो कि
एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन राइट्स मूवमेंट को फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म। तो ये कुछ टॉपिक्स तो अगेन इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते थे। एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ समवन जो कि इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो और आप कमेंट्स के अंदर कुछ और चीज़ें इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो आई वुड लव टू गो थ्रू दोज एंड गिव माई ओपिनियन कि आपने जो किया है वो ठीक है कि नहीं। तो डू कमेंट योर आउटलाइंस या फिर जो भी आपका एनालिसिस था इन द कमेंट सेक्शन बिलो। न मूविंग फॉरवर्ड, तो ये एक एनालिसिस हो गया कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ का। उसके बाद आप देखें कि व्हाट आर द चैलेंजेस जो कि फेमिनिज्म को फेस करने पड़े हैं ना। एक तो आपने कह दिया कि चलें ये इश्यूज़ हैं उनको जो मॉडर्न डे फेमिनिज्म को है, और क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से इश्यूज़ अराइज़ हो रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से इश्यूज़ की जो है वो उनकी रेजोल्यूशन सही से नहीं हो पा रही। तो इसके अंदर आप इसको स्ट्रक्चरल लेवल पे देख सकते थे कि पेट्रियार्की देख सकते थे किस तरह से है, आप देख सकते थे कि किस तरह से स्टीरियोटिपिकल जो है डिपिक्शंस होती हैं फेमिनिज्म की, किस तरह से उनको नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया जाता है, जिसकी वजह से जो इश्यूज़ उनको फेस करने पड़ते हैं वो और ज़्यादा एग्जैकबेट होते हैं। उसका पॉलिटिकल आप देख सकते थे कि हाउ दे डोंट हैव लीगल एवेन्यूज़ टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। और उसके साथ ही साथ आप इंटरनल देख सकते थे कि मूवमेंट इटसेल्फ, फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर क्या इश्यूज़ हैं, कि क्या वो कॉन्फ्रंटेशनल है ज़्यादा, या फिर क्या क्या इश्यूज़ हैं जिस तरह से आप कह सकते हैं कि रेडिकल फेमिनिज्म वर्सेस लिबरल फेमिनिज्म की जो डिबेट आ जाती है कि रेडिकल फेमिनिस्ट आर मोर यू कैन से extreme in their stance, या फिर extreme isn't the right word, they're more you can say revolutionary in their stance, which is not always gullible for the general public. You have to stay culturally relevant, and you have to stay and you have to stay in tune with the times to have an impact. You can't just import ideas and then just try to impose them in a setup जहाँ पे उनकी शायद उस तरह से रिसेप्शन ना हो, क्योंकि then you're just breeding conflict. But that's a debate for another video perhaps. इस particular case स्टडी के लिए आप बस ये चैलेंजेस देख लेते हैं। उसके बाद एक केस स्टडी अगर इंक्लूड करनी पड़ती तो आप फेमिनिज्म इन पाकिस्तान को देख लेते कि उसको क्या चैलेंजेस है। औरत मार्च के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा क्यों होता है, हालांकि उनके जो जितनी भी डिमांड्स होती हैं दे आर वेरी लेजिटिमेट एंड दे डू कोरिलेट विद द सफरिंग्स ऑफ द वुमेन दे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर हाईजैक कर लेते हैं उस मूवमेंट को, और वो एलिमेंट्स किन किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से जो सर्व एज एन इरिटेंट, क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान जैसे अगेन दिस इज़ अ डिबेट फॉर अनदर वीडियो, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर एक मैं पॉइंट बस कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे अभी हम लोग सेकेंड वेव फेमिनिज़म के इश्यूज़ को, जैसे कि वुमेंस की पॉलिटिकल राइट्स, वुमेन की इकोनॉमिक इक्वालिटी, उनकी जो है लीगल प्रोटेक्शन, उन जैसे इश्यूज़ से सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पे इंपोर्ट करना थर्ड वेव के आइडियाज़ जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म और आपके जो डिफरेंट अदर अपने आइडियल्स होते हैं, अगर उनको इम्पोज करना इन अ सेटअप जहाँ पे अभी सेकेंड वेव के हमें आइडियल्स भी अचीव नहीं हुए, तो दैट इज़ बीइंग कल्चरली इरेलेवेंट, दैट इज़ बीइंग not in tune with the realities of the time. तो उस तरह के इश्यूज़ फेमिनिज्म इन पाकिस्तान को फेस करने पड़ते हैं, और वो इंटरनल भी हैं, उसके अलावा पॉलिटिकल भी हैं कि पॉलिटिकली उनको लेजिस्लेशन उनके इस तरह से नहीं है कि उनको प्रोटेक्शन दी जा सके, या फिर उनके आइडियाज़ को कन्वर्ट किया जा सके इनटू लेजिस्लेशन, या फिर जो लेजिस्लेशन होती भी है उसको कन्वर्ट किया जा सके इनटू इम्प्लीमेंटेबल KPIs. तो that's another issue that feminism in Pakistan faces. And then there's obviously, we are a patriarchal society, we do have issues related to how we treat our women, एंड वो एक स्ट्रक्चरल चैलेंज भी फेमिनिज्म को फेस करना पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी एक एनालिसिस हो जाएगी इस चीज़ की। उसके बाद आप आ जाएंगे किस तरह से इनको एड्रेस किया जा सकता है, इस क्राइसिस को जो मॉडर्न फेमिनिज्म को फेस करनी पड़ी है। उसके अंदर अगेन आपको थोड़ा इंटरनल रिफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते कि उनको कल्चरली रेलिवेंट होना पड़ेगा, अपने साथ इंक्लूसिव होना पड़ेगा, क्योंकि इट शुड बी इंक्लूसिव टू फॉर ऑल वुमेन, नॉट जस्ट elite women in society who try to sell their own narrative at the expense of those who are actually suffering. बहुत से ऐसे issues हैं which need to be highlighted first before we move on to the issues of individual freedom and of rights that are perhaps not culturally relevant in the context of Pakistan. क्योंकि अगर आप उस तरह के rights को भी अगर impose करने की कोशिश करेंगे तो that overshadows the actual genuine grievances of women that can be actually addressed within the current context. तो वो एक चीज़ करने की ज़रूरत है। ऊपर से एक और जो पॉइंट है कि उनको दे नीड टू बी मोर रिफॉर्मेटिव rather than confrontational in their approach. So these are some of the points that came to my mind while I was mulling over this particular topic.
अगेन सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, एंड देयर माइट बी पीपल जिन्होंने डिफरेंट तरीके से इसको अटैम्प्ट किया होगा, एंड आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ द ओनली राइट वे टू अटैम्प्ट इट, लेकिन दिस इज़ वन वे दैट यू कुड हैव अप्रोच्ड दिस पर्टिकुलर ऐसे। उसके बाद लेजिस्लेशन आ जाएगी, मेन स्ट्रीमिंग आ जाएगी उन सबकी, और अवेयरनेस अमंग्स द मैसेज ऑफ वाई फेमिनिज्म इज़ इंपॉर्टेंट, ऑफ वाई वुमेन्स इक्वालिटी इज़ इंपॉर्टेंट, दैट वुड सर्व अ गुड डील। इसके अंदर अगेन आप केस स्टडी नॉर्वेजियन एक्सपीरियंस की दे सकते थे कि उधर किस तरह से जेंडर इक्वालिटी, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग अचीव की गई, और उसको किस तरह से आप रेप्लिकेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो दीज आर सम ऑफ द डायनामिक्स दैट यू कैन कंसिडर, और उसके बाद आप कंक्लूड कर देंगे। तो अगेन स्टेइंग रेलिवेंट टू द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्टेइंग ट्रू टू व्हाट द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने जो अभी तक देखा है, तो दो टॉपिक्स के अंदर यू सी के रेलिवेंसी, और इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो टॉपिक से पूछा गया, फेमिनिज्म देख के सिर्फ फेमिनिज्म पे शुरू ना हो जाए, बल्कि ट्राई टू आंसर व्हाट द एग्जामिनर इज़ एक्चुअली आस्किंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 3 जो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और मुझे लगता है कि ये भी दिस हैज़ आल्सो बीन अ वेरी पॉपुलर चॉइस, और इट्स राइटली अ वेरी पॉपुलर चॉइस, इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू टैकल, और वो ये है कि किस तरह से टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शंस आर शेप्ड बाय मास मीडिया, और किस तरह से जो मीडिया है वो जो टेररिज्म को जिस तरह से देखा जाता है दुनिया में, उसको किस तरह से मीडिया शेप करता है, कि आप देखें कि मीडिया के पोर्ट्रेल्स का क्या इशू आ जाता है इसके अंदर। तो विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द कीवर्ड्स विच आर टेररिज्म, परसेप्शन एंड मास मीडिया। ठीक है, ये 3 कीवर्ड्स उसने इस्तेमाल किए, और इन्हीं के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़, जो मेन एनालिसिस आपकी होगी, वो मीडिया पोर्ट्रेल्स की होगी, कि मीडिया किस तरह से अपने जो है आउटलेट्स के ऊपर पोर्ट्रे करता है टेररिस्ट को। इसके अंदर आप बता सकते हैं किस तरह से उनकी बायस होती है, आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह से एक अगर टेररिस्ट, अगर वो मुसलमान, उसका मुस्लिम साउंडिंग नेम है, तो इट वुड बी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, या फिर मुस्लिम टेररिस्ट, या फिर इस्लामिक टेररिज्म, उस तरह की टर्म्स इस्तेमाल की जाएंगी। या फिर जबकि अगर वो एक वाइट मैन है, या फिर अगर कोई यूरोपियन क्रिश्चियन, जूडो क्रिश्चियन बंदा है, तो उसको फिर एक लोन वुल्फ का कर दिया जाएगा, मेंटली इनस्टेबल के एलिमेंट्स दिए जाएंगे, और इस तरह से चीज़ें कही जाएंगी ताकि उसको पैसिफाई किया जा सके, और उसको एक लार्जर डेमोग्राफिक के साथ रिलेट ना किया जाए। क्योंकि अगर एक मुसलमान या फिर अरब साउंडिंग नेम होगा, तो वो फिर पूरा ब्लेम उस टेररिज्म का जाता है, बिकॉज इट्स अ मुस्लिम टेररिस्ट। ठीक है, लेकिन अगर कोई वाइट मैन होगा, कोई यूरोपियन होगा, कोई जूडो क्रिश्चियन होगा, तो उसका ब्लेम इंडिविजुअल होता है। ठीक है, उसके ऊपर आपका ये नहीं कहते कि क्रिश्चियन टेररिस्ट फॉर एग्जाम्पल अटैक द मॉस्क, उधर होता है कि वाइट मैन, अ लोन वुल्फ अटैक द मॉस्क, मेंटली अनस्टेबल a bullied individual attacked a mosque. तो वो जो representations हैं that do have an impact on the larger psyche, because अगर आप terrorism का नाम सुनेंगे तो फिर आप associate उसको usually Muslims के साथ ही करते हैं, आप उसको associate usually इस्लाम के साथ ही करते हैं, आप associate उसको usually brown skin people के साथ ही करते हैं। इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी केस स्टडी would be इकबाल अहमद's Terrorism Us versus Them. That's a very nice book. It's a very nice lecture. ये आपको YouTube पे भी मिल जाएगा. I would highly recommend going through it. It's very insightful, and it does talk about how the media actually forwards an us versus them debate, जिसके अंदर there is an otherization of Muslims, और उनको एक terrorist element या फिर terrorist guard बना के पूरी community को target किया जाता है। तो ये I would recommend going through that. तो इस तरह से आप इसको पूरा मीडिया पोर्ट्रेल के एग्जाम्पल लेकर इसको पूरा पोर्ट्रे कर सकते थे। उसके बाद आप आ जाते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं इस तरह के स्क्यूड मीडिया पोर्ट्रेल्स के। इसके अंदर सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस है, जो कि शुड हैव बीन योर मेन एनालिसिस, वुड बी द राइज ऑफ इस्लामोफोबिया, कि किस तरह से जो मीडिया पोर्ट्रेल्स हैं और जिस तरह से मीडिया ने एक फ़ियर ऑफ मुस्लिम्स डाल दिया है, स्पेशली यूरोपियन वाइट माइंड के अंदर, तो उसके क्या इम्पैक्ट्स आए हैं। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट इज़ राइज ऑफ इस्लामोफोबिया, किस तरह से देयर इज़ एन इंक्रीजिंग राइज ऑफ मुस्लिम यू कैन से अटैक्स ऑन मुस्लिम्स, या फिर हाउ देयर इज़ एन इंक्रीजिंग राइज इन कॉन्फ्लिक्ट इन मुस्लिम कम्युनिटीज़, और किस तरह से एक इस्लाम को भी बुरा किया जा रहा है और मुस्लिम कम्युनिटी को भी इन डेंजर डाला जा रहा है बिकॉज ऑफ दीज मीडिया पोर्ट्रेल्स। और इसका और एक एग्जाम्पल है वुड बी द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसके अंदर इससे इसके इस्लाम और वेस्ट आर डेस्टिन्ड टू क्लैश और दे आर इनकम्पैटिबल, और इस इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से देयर इज़ द राइज ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, विच इज़ अ वेरी रेसिस्ट theory in my opinion, and it does actually put the Muslim community at a disadvantage, because then they're viewed as the other, as the enemy by the Western nations.
फिर उसके बाद आप आ जाते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपने बता दिए, तो फिर आप बताते कि स्टेप्स क्या हैं कि आप इस जो परसेप्शन या पे मास मीडिया का रोल है उसको बेहतर कर सकें। उसके अंदर ये कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हो मीडिया ऑफिशियल्स की, उनको पता हो कि किस तरह से क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए एंड व्हाट वेट देयर वर्ड्स कैरी। दूसरा, उनकी जो है सब्जेक्टिविटी जो है उसको कम करना चाहिए। जो सब्जेक्टिव रिपोर्टिंग है उसकी जगह ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग होनी चाहिए। देयर शुड बी रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स और देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड इन रिपोर्टिंग। ये ना हो कि अगर कोई अरब या फिर मुसलमान के बारे में रिपोर्टिंग हो रही है तो दैट्स मोर नेगेटिव, और अगर किसी वाइट पर्सन के बारे में रिपोर्टिंग हो रही है तो दैट्स मोर यू कैन से वाटर्ड डाउन in its analysis. So there should be objective reporting, there should be reporting of facts, and there should be no false associations. अगर एक बंदा क्राइम कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि the community is to be blamed. तो दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी हैंडल्ड। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की ज़्यादा होनी चाहिए विद इन मीडिया चैनल्स। मुसलमानों के अपने मीडिया चैनल्स होने चाहिए, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन इन्हांस होनी चाहिए इन वेस्टर्न मीडिया चैनल्स, ताकि उनको पता हो कि क्या एक्चुअली इश्यूज़ क्या हैं और किस तरह से जो पोर्ट्रेल्स हैं उनको मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा सकता है, मोर इंक्लूसिव बनाया जा सकता है, मोर फेयर बनाया जा सकता है। तो जो परसेप्शंस हैं ताकि वो चेंज की जा सकें और फिर जो टेररिज्म का लार्जर इशू है उसको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सके। तो ये कुछ डायनामिक्स थी, आप कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर। और अगेन इफ़ यू हैव फर्दर आइडियाज़ आई वुड लव टू हेयर देम इन द कमेंट सेक्शन। डू शेयर योर व्यू पॉइंट्स एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। Okay, on to the next topic. This is kind of rushing through it, but primarily because topics कुछ ज़्यादा थे and I wanted to cover all of them थोड़ा सा briefly ही बेशक, लेकिन I just wanted to give a complete analysis of the CSS 2022 paper. So the next topic is primarily the analysis of the concept of globalization of markets. ये again एक popular topic था, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा डिटेल में टच किया है। इसके अंदर कीवर्ड्स are primarily globalization and markets, ठीक है। आपने देखना है कि markets itself का concept क्या है और उसके बाद globalization उसको किस तरह से impact करती है। That is primarily what is required in this essay. Again, a little risky topic in the extent case की analysis portion would be something that would require a holistic stance, क्योंकि आप सिंपली उसको एक वन साइडेड आर्ग्यूमेंटेशन इसमें नहीं कर सकते। उसने एनालिसिस का है तो इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड यू नीड टू हैव अ वेरी होलिस्टिक एनालिसिस ऑफ दिस। तो जो डायनामिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि आप ग्लोबलाइजेशन को देख सकते हैं और उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं मार्केट इकोनॉमी के अंदर, किस तरह से उसने ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस किए हैं। जो है आपकी फ्री मूवमेंट का जो आइडियल है ग्लोबलाइजेशन का वो क्या है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। प्राइमरीली आपने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को इसके अंदर टैकल करना है, क्योंकि उसने मार्केट्स की बात की है तो इसके अंदर पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन और वो बॉर्डर्स की रिडक्शन और वो सारा कुछ की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर लार्जली आप इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को ही टारगेट करेंगे, किस तरह से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ने मार्केट्स को इम्पैक्ट किया है, उसके अंदर किस तरह से उन्होंने ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस किए हैं, ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट किया है। उसके अलावा उसने जो है डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की चीज़ कर दी है, आउटसोर्सिंग ऑफशोर कंपनीज़ का इशू आ जाता है इसके अंदर, सारा कुछ वो सब चीज़ें आप देखेंगे कि किस तरह से राइज़ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हुआ है और वो सारी चीज़ें किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं मार्केट्स की या फिर मार्केट इकोनॉमी को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स का जो है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है या फिर उसका क्या प्रोज क्या रहे हैं, कि किस तरह से उसने आपको चीपर गुड्स दिए हैं या फिर उसके अलावा आपको जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो गए हैं या फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की वजह से लोगों के जो है कॉन्फ्लिक्ट कम हो गया है, या फिर इस तरह से सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, और उसके साथ ही साथ फिर उसके बाद आप नुकसानात के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फिर डिपेंडिंग ऑन विच स्टांस यूर टेकिंग, वेदर योर एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स इज़ इन अ पॉजिटिव लाइट तो आप प्रोज के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे, इफ इट्स इन अ नेगेटिव लाइट तो आप कॉन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे। दिस वुड प्राइमरीली बी योर मेन एनालिसिस। और फिर कॉन्स के अंदर आप बता सकते हैं किस तरह से इनक्वालिटी का इशू आ जाता है, डिपेंडेंसी थेरी आ जाती है, उसके अलावा आ जाता है कि जो है इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म की बात आ जाती है। अफ्रीका की एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं कि किस तरह से उधर एक्सप्लॉयटेशन होती है, और डिफरेंट और लेबर के हवाले से क्या इश्यूज़ आ जाते हैं, आपके जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनइक्वालिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। दीज आर थिंग्स दैट यू कैन टॉक अबाउट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इनइक्वालिटी की मैं बात कर दूँ तो हॉरिजॉन्टल वुड बी कि कंट्रीज़ के बीच में किस तरह से आया कि थर्ड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर क्या गैप्स आए हैं, और फिर वर्टिकल वुड बी कि जो विद इन द कंट्रीज़ जो आपके रिच पुअर गैप कितना बढ़ गया, जैसे तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स को चैलेंजेस क्या करते हैं अभी जो अफेक्ट कर रहे हैं। उसके अंदर ट्रेड वॉर्स आ सकते हैं, इसके अंदर आप यूएस चाइना
की बात कर सकते हैं, आसियान की बात कर सकते हैं, पॉपुलिज्म की बात कर सकते हैं, ट्रंप, ब्रेक्सिट और जो ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शंस थे जिसके अंदर मॉरिसन का राइज आया वो उसकी बात कर सकते हैं। आप क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म की बात कर सकते हैं जिसके अंदर ओवर कंजम्पशन, TNCs का रोल क्या रहा है नेगेटिव, उसके अलावा आपका जो है इनक्वालिटी का क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। फिर आप फाइनली उसको बताएं कि इन चैलेंजेस को किस तरह से एड्रेस किया जा सके ताकि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स जो कि इज़ अ वेरी पॉजिटिव, should be taken as a positive thing but hasn't actually given very equal dividends, तो how to make those dividends equal, तो आप इन impediments को किस तरह से टैकल कर सकते हैं ताकि the globalization is made more fair इन इट्स आउटलुक। तो ये मोटा मोटा कुछ चीज़ें आप इसके अंदर टैकल कर सकते थे। और अगेन इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट एंड आई वुड लव टू हेयर योर ओपिनियन कि आपको क्या लगता है जिन्होंने अटैम्प्ट किया है उन्होंने और क्या पॉइंट्स इस्तेमाल किए जो अगर इसको अटैम्प्ट करते तो और क्या पॉइंट्स इंक्लूड करते, तो डू मेंशन दोज इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद अगला टॉपिक वुड बी दी ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये जो जिसने टॉपिक किया है यूजुअली आई एम गेसिंग वुड बी IR स्टूडेंट्स, क्योंकि इस दफ़ा तकरीबन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर IR स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदा था बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, और देयर वाज ऑप्शनल्स के अंदर भी व्हाट आई हैव सीन इज़ कि IR का पेपर वाज रिलेटिवली ईजियर कंपेयर टू से अकाउंटिंग या फिर फिज़िक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस फॉर दैट मैटर। तो IR स्टूडेंट्स के लिए इस दफ़ा काफ़ी फ़ायदा हो गया एग्ज़ाम्स के अंदर भी, और दिस वाज अ कम्प्लीटली प्योरली IR क्वेश्चन, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसको जो IR के स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सके होंगे। इसके अंदर अगेन दो कीवर्ड्स हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, फेयरली सिंपल टॉपिक, वेरी ओपन एंडेड, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको लेकर जा सकते थे। तो मैंने जो इसको किया, मैं हैव लिमिटेड इट डाउन टू अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कुड हैव बीन डन। आप सबसे पहले यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट द गिवन एन ओवरव्यू ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, के अंदर आप डिफरेंट इशूज़ को डिस्कस कर देते हैं जिसके अंदर चाइना, US आ जाता, यूक्रेन आ जाता, राइज ऑफ रशिया आ जाता, एशिया पैसिफिक के अंदर जो ऑकस स्क्वाड और डिफरेंट चीज़ें हैं वो आ जाती हैं, इंडिया का रोल इन साउथ एशिया आ जाता, अफ़गानिस्तान आ जाता, अफ्रीका आ जाता, और जो जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं वो कर सकते थे इसके अंदर इंक्लूड। तो एक ओवरव्यू दे देते ग्लोबल पॉलिटिक्स का, उसके बाद आप बताते कि इस ग्लोबल पॉलिटिक्स को आप किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूजिंग IR थेरीज़। IR थेरीज़ का इसके अंदर क्या रिलेशन आ सकता है कि लिबरलिज्म इज़ इट ऑन द राइज, इज़ इट ऑन द फॉल, रियलिज्म आपको कहाँ कहाँ पे नज़र आ रहा है, चाइना वर्सेस US, यूक्रेन के अंदर नज़र आ रहा है, उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म की क्या थेरीज़ हैं उसको किस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, और फिर आप उसके बाद बताते हैं कि हाउ दीज थेरीज़ कैन एक्चुअली गाइड us in dealing with tensions prevalent in the global politics, or how we can utilize these theories as a means to not just understand global politics but also to resolve it, to resolve the challenges that are being faced within the ambit of global politics। इसके अंदर आप किस तरह से लिबरलिज्म की theories इस्तेमाल कर सकते या फिर रियलिज्म की theories इस्तेमाल कर सकते। तो this is one way to go about this particular topic। Again, it's not an exhaustive manner of doing it, इसके और भी बहुत तरीके होंगे और हैं भी, आई एम श्योर कि इसको आप और किस किस तरीके से कर सकते थे। आई वुड लव टू हेयर दैट, और किस तरह से किया गया है वो भी आई वुड लव टू हेयर। So now that we've discussed the major topics that came in the exam, we'll just go through some of the topics that were not perhaps that popular but that did feature, and we can just go over them briefly over what are the possible ways that one could have gone over them। उसके बाद इसमें सबसे पहले आ जाता है ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ चाइना। इसके अंदर आप डिफरेंट जो है आपका फोकस होना चाहिए था ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ चाइना एंड हाउ इट्स इम्पैक्टिंग ग्लोबल ट्रेड। इसके अंदर OBOR की आप स्ट्रैटेजी की उसकी बात कर सकते थे, आप उसकी एंगेजमेंट विद आसियान की बात कर सकते थे, आप उसकी जो नैरेटिव है ऑफ ओपन बॉर्डर्स उसकी बात कर सकते थे, आप उसका जो नैरेटिव है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का उसकी बात कर सकते थे, आप उसकी डीलिंग्स विद US की बात कर सकते थे, US चाइना ट्रेड वॉर को एक केस स्टडी बनाकर आप देख सकते थे कि उसका क्या इम्पैक्ट रहा है एक ग्लोबल ट्रेड के ऊपर। तो दीज आर सम वेज दैट यू कुड हैव टैकल्ड इट। और फिर उसके बाद आप बताए थे कि हाउ दीज ट्रेड पॉलिसीज़ कैन बी मेड मोर इंक्लूसिव, या फिर क्या आपको क्या एनालिसिस आर दीज ट्रेड पॉलिसीज़ हैविंग अ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड। तो आप उस तरह से इसको एनालिसिस कर सकते थे, क्योंकि चाइना हैज़ अ वाइड नेटवर्क ऑफ ट्रेड राउट्स, और उसकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं जैसे वो मलक्का डायलेमा के अंदर उसको क्या ट्रेड पॉलिसीज़ रहती हैं, उसकी ट्रेड पॉलिसीज़ OBOR को लेकर क्या हैं, उसकी ट्रेड पॉलिसीज़ आसियान को लेकर क्या है, उसकी ट्रेड पॉलिसीज़ अफ्रीका को लेकर क्या है। तो यू कुड हैव टेकन अ वेरी होलिस्टिक स्टांस, होलिस्टिक अप्रोच टू दिस टॉपिक, और उसको फिर ग्लोबल ट्रेड के साथ रिलेट करते हैं कि वो ग्लोबल ट्रेड उससे किस तरह से इम्पैक्ट हो रही है। तो दिस इज़ हाउ यू कुड हैव सॉल्व दैट। उसके बाद अगला टॉपिक है इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। दिस इज़ परहैप्स द ओनली लिटरेरी एसे दैट केम इन दिस ईयर्स अटैम्प्ट, और इसका प्राइमरीली तो यही है कि आपकी जो इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज का प्राइमरीली जो चीज़ है वो ये है कि क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कन्वेंशनल नॉलेज से।
जो कि आपको चीज़ें बताता है, लेकिन आपको you're not actually prompted to think beyond the facts. तो थिंकिंग बियॉन्ड द फैक्ट्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आप इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकते थे ऑफ डिफरेंट फिलोसफर्स हु वेंट बियॉन्ड द नॉलेज दैट एग्जिस्टेड इन देयर टाइम्स, और दे इमेजिन न्यू रियलिटीज़ एंड दे डेवलप न्यू थियरीज, और उसका क्या इम्पैक्ट रहा. आप इस डिफरेंट स्कॉलर्स की एग्जांपल दे सकते हैं. आप डिफरेंट जो है रिलीजियस स्कॉलर्स की एग्जांपल दे सकते हैं, पॉलिटिकल स्कॉलर्स की एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू प्रूव किया कि जो कन्वेंशनल नॉलेज है दैट इज़ नॉट itself sufficient. और अगर आपको if you want to bring revolution, if you want to bring new ideas, if you want to bring innovations to society, you need to think beyond the knowledge that exists within the times. और creative thinking का और critical thinking का क्या importance है. इसके अंदर आप साइंटिस्ट वगैरह सबकी एग्जांपल दे सकते थे. तो इट्स अ वेरी अगेन लिटरेरी ऐसे है, तो इसको आप किसी भी डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं. उसके बाद वर्ल्ड फूड सिस्टम्स एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर है. तो आप इसको रिलेट कर सकते थे कि किस तरह से देयर इज़ कंसर्न ऑफ ग्रोइंग फूड इनसिक्योरिटी, और हाउ द एग्रीकल्चर इज़ चेंजिंग इन दैट रिगार्ड. हाउ इट्स मतलब यूएस के अंदर किस तरह से है, यूएस का प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ क्या है एग्रीकल्चर को लेकर. उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशंस क्या आई हैं, एग्रीकल्चर की जो इंपॉर्टेंस है वो किस तरह से बढ़ गई है इन द करंट कॉन्टेक्स्ट. फिर आप पाकिस्तान की केस स्टडी ले सकते थे कि किस तरह से द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन पाकिस्तान हैज़ एक्चुअली डिटेरिएटेड, और उसकी फिर implications क्या रही ऑन द फूड सिक्योरिटी इंडेक्स विच हैज़ कंसिस्टेंटली फॉलन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान. तो आप वर्ल्ड फूड सिस्टम्स का एक ओवरव्यू देने के लिए आप एक तो इसको इनसिक्योरिटी के साथ रिलेट कर सकते थे, कंजम्पशन के साथ रिलेट कर सकते थे, और प्रोडक्शन के साथ रिलेट कर सकते थे. तो दैट इज़ हाउ यू कुड हैव गॉन अबाउट इट. अगेन अ वेरी आई थिंक अगर किसी का एग्रीकल्चर एंड बॉटनी वाला ऑप्शनल है तो वो शायद इसको अटैम्प्ट करता है. नॉट अ वेरी पॉपुलर चॉइस अमंग एस्पिरेंट्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक. उसके बाद इज़ देयर सच अ थिंग एज एथिकल कंज्यूमरिज्म. दिस इज़ अगेन अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म इटसेल्फ. और जो आपकी ओवर कंजम्पशन की क्रिटिक है, आपकी जो है एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स की कंजम्पशन की क्रिटिक है, वो सब कुछ आ जाता कि किस तरह से जो हमारी कैपिटलिज्म जो एक ओवर कंजम्पशन को प्रमोट करता है या फिर मटीरियलिज्म को प्रमोट करता है, उसके क्या इम्प्लिकेशंस रही हैं, और उसकी जो कंजम्पशन है क्या वो एथिकल हो सकती है. उसकी एथिकल कंजम्पशन इस तरह से होगी कि सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर फोकस रखा जाए जो कि नीड्स हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मच या फिर ओवर एम्फेसिस ऑन लग्जरी आइटम्स. वन शुड डायरेक्ट आर रिसोर्सेज टू वेज दैट अलाउज फॉर सस्टेनेबल कंज्यूमरिज्म या फिर एथिकल कंज्यूमरिज्म. तो उसको आप किस तरह से रिलेट करते हैं इस चीज़ के अंदर. तो दैट इज़ वन वे टू गो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक. उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी. अगेन इट्स रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, और इसके अंदर आप ये कह सकते थे किस तरह से ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए और उसकी क्या इम्प्लिकेशंस होती हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पे. अगर आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आप कहते हैं कि एजुकेशन लिटरेसी के है, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके अलावा हेल्थ है, और उसके अलावा जो है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल एजेंसी, इकोनॉमिक एजेंसी. वो सारी चीज़ें जो हैं उनका क्या इम्प्लिकेशंस होती हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पे. इक्वालिटी, इकोनॉमिक जस्टिस और जो है आपकी सस्टेनेबिलिटी, ये किस तरह से कोरिलेटेड है. और जो ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस है कि जिसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए जो कि इज़ एक्चुअली नॉट एक्सप्लॉयटेटिव बट इंक्लूसिव. अगर इंक्लूसिव होगा तो उसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी किस तरह से बढ़ेगी, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है टू जीडीपी वो किस तरह से बेहतर हो जाएगी, ज़्यादा डाइवर्स हो जाएगी. उसके अलावा आपकी जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी वो किस तरह से बढ़ जाएगी, आपकी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ किस तरह से इम्पैक्ट होगी, और ये सारी चीज़ें किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगी टुवर्ड्स इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी. इसके अंदर आपने अगर आर्ग्यूमेंट देनी होती कोई तो आप बताते कि किस तरह से इन द करंट कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज़ अ बिग कंसर्न बिकॉज मोस्ट सोसाइटीज़ aren't economically sustainable. There are rich countries, but even within those rich countries there is a growing population that is increasingly falling below the poverty line. आप यूएस की एग्जांपल दे सकते थे जहाँ पे टॉप 10 बिलियनियर्स में से ऑलमोस्ट 7 या फिर 8 लोग यूएस से बिलोंग करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट 30% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन. तो ये एक इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मॉडल नहीं है इवन इन द मोस्ट एडवांस्ड डेमोक्रेसीज. तो आप उसको एक केस स्टडी बना के उसको डाइसेक्ट करते हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, और उसके बाद फिर फोकस करते हैं कि उन चैलेंजेस को किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है. तो दैट वुड हैव बीन वन वे टू गो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक.
And that should cover all the 10 topics that came in the CSS 2022 exam. I hope this particular video was useful for you, particularly in the context of not just understanding the topic itself, but also on how you can approach topics of a diverse nature, and to give an analysis that is more holistic rather than one directional. तो मेरा मकसद इस वीडियो का यही था कि आप लोगों को एक तरीके से बता सकूं कि किस तरह से आप जो हैं अपने अल्फाज और अपना जो आउटलाइन है या फिर अपने जो आर्गुमेंट है उसको इस तरह से बिल्ड करें कि वो रेलेवेंट भी रहे, और साथ ही साथ उसकी जो रेलेवेंसी है वो रिफ़्लेक्ट करे आपके एक एनालिसिस के अंदर भी, और आपकी जो एनालिसिस है वो होलिस्टिक भी रहे, और साथ ही साथ अपनी सोच एग्जामिनर के पास पहुंचाए कि अच्छा ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस तरह से इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट बम्बार्डिंग हिम विद फैक्ट्स, बम्बार्ड हिम with opinions, bombard him with factual, not just factual analysis but actually critical analysis as well. तो ये particular purpose था इस exercise का, and I hope you found it useful. इसके अलावा मेरे जो particularly जो है analysis अगर होगी about the exam paper itself, I would say कि it was a relatively easier paper, relatively easier in the sense कि there was something for everybody. आपके पास, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके पास डेमोक्रेसी का चैप्टर था, अगर आप आईआर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं आपके पास इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक था. तो इट वाज अ वेरी इट केटर टू अ वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स, और इट वाज अ वेल बैलेंस्ड पेपर इन माय ओपिनियन. Other than that, I wish you all the best of luck जिन्होंने जो topics attempt किए हैं. I hope after this video you would have a better understanding of where you stand, and for those who are just planning on giving the CSS exam, I hope this video would help you understand कि किस तरह से आपके पास जब पेपर आता है तो आपने किस तरह से किसी टॉपिक के बारे में सोचा जा सकता है. So with these words, I bid farewell. Also, if you want to support the channel, again I'll be making more videos in the coming days, and I would love for you to support it. Then do please subscribe, and there are some links in the description where you can support it economically as well. So I would really appreciate that. Every bit counts. And thank you so much for listening. And if you need any further information, I will be posting regularly on my Facebook page as well. वहाँ पे मैंने पिछले भी कुछ कंटेंट शेयर करता रहता हूँ जिसके अंदर वोकैबुलरी लिस्ट्स आ जाती हैं, आपके डिफरेंट बुक्स के रिव्यूज़ आ जाते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली चेक दोज एज वेल. एंड आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली माई इंस्टाग्राम पेज एज वेल, और उसके ऊपर भी आई स्टार्ट रेगुलर पोस्टिंग in a short while, so do check that out as well. And again, do subscribe to the YouTube channel. Thank you so much for listening, and I hope this video was useful for you. Jazakallah khair.